So before we start, about me, I'll just introduce, I'll moderate the session. The session is all about trade compliance and tax clarity. Theme is staying on the right side of the compliance. During my presentation, I spoke about कैसे हम compliance को ध्यान में रखते हुए बिजनेस को आगे बढ़ाएं, क्योंकि बिजनेस को अगर ग्रो करना है तो कंप्लायंस के राइट साइड पे रहना बहुत ज़रूरी है. एंड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट द अदर कंट्री कंप्लायंस ऑल्सो, क्योंकि आप खाली इंडिया के कंप्लायंसेस नहीं, आप दूसरी कंट्री में भी डील कर रहे हैं, वहाँ के अपने रेगुलेशन होंगे, कभी माल जाके वहाँ पे अटक जाता है या कस्टम से क्लियर नहीं होता है या काउंटर, या हो सकता है दूसरी कंट्री की भी टैक्स लायबिलिटी आपके ऊपर हो. So taking care of all these things is very important. So I'm Indunath. I look at business and operations for BriskPay. I come from banking background. With Citi, I managed cross-border trade and cash management almost a decade, for a decade. And उससे पहले मैं ICICI बैंक में था, जहाँ पे SME business handle करता था. I would request. I would like to welcome Snehal ji, Navneet ji and Ravi ji to this panel, and I would request them to introduce themselves, what they do, and then we will get into the question and answer particularly, which will help all the attendees to understand the aspects better. Snehal ji, if you can introduce yourself. Yeah. Good afternoon, everyone. I am Snehal Sokadia, Chartered Accountant by profession and a partner at a firm called Atharo Advisors. We are based out of Ahmedabad and we specialize in cross-border transaction structuring, and we are FEMA consultants also. So we help clients to be compliant with FEMA and also represent them before the RBI authorities for the compounding and before the enforcement directorate, the EDO authorities also. Thank you. Thank you, Snehal ji. Ravi ji, if you can introduce yourself. Hello, good afternoon everyone. Myself Ravi. I am also a chartered accountant. मैं पुरुषोत्तम एसोसिएट्स में हूँ, पार्टनर हूँ. हमारा काम बेसिकली क्या है, एक्सपोर्टर्स को इनेबल करना कि वो ग्लोबल जा पाएँ. फॉर एग्जांपल किसी ने यूएस में एक्सपेंड करना है या किसी और कंट्री में एक्सपेंड करना है, तो उस कंट्री की जो टैक्सेशन नॉलेज है, जो कंप्लायंस है, किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई कंप्लायंस है, हम वो इनेबल करते हैं. तो विल डिटेल में हम डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग पैनल डिस्कशन. दिस इज फॉर ऑल. Thank you, Ravi ji. Navneet ji. Thank you. Thank you for the opportunity, sir. Good afternoon, everyone. I am Navneet. I am representing World Trade Center Jaipur here. We are part of World Trade Centers Association, New York. We are present in around 100 countries with around 330 offices globally. So you name a country and we are present there. We are here in Rajasthan for last 10 years, and primarily we are trying to assist micro, small and medium enterprises leverage upon the network that we have and venture into exports. So we have been fairly successful, and as you can understand, we have chartered accountants and we have sir with us. So I'll be a backbencher in the panel discussion, but wherever I can give some inputs, I will definitely love to. Thank you. Thank you, Navneet ji. And to kickstart the session, we'll try to cover some of the aspects with respect to in-country compliance, क्योंकि है तो हम इसी देश में, और कल को कुछ ऊपर नीचे होता है तो यहीं की रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हमें पकड़ेंगी. एंड then we will go to Ravi ji and we'll try to understand कि country specific क्या broad level aspects हैं जिसको हम cover कर सकते हैं. And then of course Navneet ji will help us how World Trade Center can help us and what all they do. So starting with you, Snehal ji, particularly if we talk about the in-country compliance, what is the key difference between domestic sales, like आज मैं जयपुर में बैठा हूँ, जयपुर से मुंबई माल बेच रहा हूँ या फिर जयपुर से अजमेर में माल बेच रहा हूँ, vis-a-vis when I am selling something overseas, पेमेंट तो चलिए हम करा देंगे, ब्रिस्कपे के पास वो सॉल्यूशन है, लेकिन पेमेंट आने के बाद और क्या एस्पेक्ट्स हैं, या फिर एक्सपोर्ट शुरू करने से पहले क्या एस्पेक्ट्स हैं जिनका ध्यान एक एक्सपोर्टर को रखना चाहिए. इफ़ यू कैन टच अपॉन, मे बी हो सकता है रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट हो सकता है कुछ सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट हो, बिफोर स्टार्टिंग एक्सपोर्ट एंड आफ्टर दैट. Well, very good question, Indu ji.
तो द बेसिक डिफरेंशिएशन बिटवीन लोकल सेल एंड एक्सपोर्ट्स में ये होता है कि लोकल सेल में तो क्या है कि हमारा खैर जो सप्लाई ऑफ गुड्स रहता है वो विद इन द स्टेट या इंट्रा स्टेट रहता है. आपको एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लो ऑन, उसके बाद में यू हैव टू सेल द गुड्स. आप SGST, CGST, IGST अप्लाई करके आप एक्सपोर्ट्स इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स कर सकते हो. पर जब एक्सपोर्ट्स की बात आती है तो एक्सपोर्ट्स में थिंग्स गेट कॉम्प्लिकेटेड. सबसे पहले जब आप एक्सपोर्ट्स करो तो आपके पास एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड करके एक नंबर होना चाहिए, वेयर यू हैव टू प्रोवाइड. सो फॉर दिस इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड यू हैव टू प्रोवाइड योर बेसिक डिटेल्स कि आप आपका बिजनेस क्या है, हु इज़ द owner of the business or the details of the proprietor, or in case of a company the details of the shareholders and everything. उसके बाद में आप कौन से कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट्स करने वाले हो, डेट डिटेल्स, एंड कौन से गुड्स में आप एक्सपोर्ट करने वाले हो, वो कौन से गुड्स या सर्विस जिसमें आप डील करने वाले हो, ऑल दोज थिंग्स डेट यू टू फिल अप एंड देन गेट द इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड. Once you get this import export code, the procedure for export starts. तो उसके लिए ये होता है कि you have to so let's say if you are exporting goods to certain countries, then वो exports करने के लिए आपका shipping bill ready होना चाहिए. In this shipping bill you have to mention the details of the goods that you are exporting, and this shipping bill would be then filed with the customs authorities once you export the goods to those countries. जब ये customs authorities के पास जाता है तो वो डेटा सारा फिर आगे एक EDPMS करके पोर्टल है, एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम. जो EDPMS सिस्टम ये सारा का सारा जो शिपिंग बिल रिलेटेड जितना भी डेटा है that would be uploaded on the portal by the customs department, and once वो अपडेट हो जाता है EDPMS पे, देन इट गेट्स अ स्टेटस ऑफ पेंडिंग एक्नॉलेजमेंट. जो पेंडिंग एक्नॉलेजमेंट स्टेटस होता है उसके बाद में आपका जितना भी इनवॉइसेस है, शिपिंग बिल है, बिल ऑफ लीडिंग है, ऑल दोस डॉक्यूमेंट्स नीड्स टू बी फाइल्ड विथ योर बैंकर. वो बैंक को आप डॉक्यूमेंट्स देंगे तब बैंकर उनको भी EDPMS का एक्सेस रहता है. Banker will update all these details in the EDPMS system, और उसके बाद में the status gets changed to pending payments. And pending payments के बाद जब आपको payment receive होता है against these exports, you have to again get in touch with the banker for getting foreign inward remittance advice, which was earlier known as foreign inward remittance certificate (FIRC), and a bank realization certificate. ये दो डॉक्यूमेंट्स के साथ जो बैंक्स आपको जनरेट करके देंगे, एंड देन यू हैव टू सिट विद द बैंकर्स टू क्लियर ऑफ योर आउटस्टैंडिंग EDPMS एंट्रीज विथ दिस पेमेंट दैट हैज़ बीन रिसीव्ड अगेंस्ट द एक्सपोर्ट्स. जब ये नॉक ऑफ होगा उसके बाद में योर एंटायर एक्सपोर्ट साइकिल गेट्स ओवर. एंड प्रेजेंटली आज की तारीख में इंडिया में ऐसा माना जाता है कि EDPMS and IDPMS is import data monitoring and processing system. अगर वो एंट्रीज अगर आउटस्टैंडिंग रही आपकी, then there is a very stringent control of RBI on this. So every exporter should take a note of this. So couple of follow-up questions on this, Snehal ji, before I come to you. Is it very difficult? Maybe we can do a quick Q&A on this. IEC के बारे में आपने बात की, मुश्किल है लेना? No, IEC is not that difficult. You can get it, you can make the application within a couple of hours, and the IEC you will get it within a week. So not that difficult. And are there any regulations around restrictions? जैसे अब मान लीजिए मैं आर्म्स एंड एम्यूनेशन बनाता हूँ, उसको एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो क्या अलग कंप्लायंसेज उसके लिए लगते हैं? क्या मैं कुछ भी बेच सकता हूँ ओवरसीज ज्योग्राफी में एंड आई कैन गेट एन IEC? क्योंकि आपने डिक्लेरेशन की बात की कि आप क्या बना रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, उससे अराउंड भी कोई रेगुलेशन है जिसका ध्यान रखना पड़ता है? So Indu ji, there are certain goods and there are certain kind of services that are prohibited.
एंड दे आर बीइंग क्लोजली मॉनिटर्ड बाय द गवर्नमेंट. तो आर्म्स एंड एम्यूनिशन का जैसे आपने एग्जांपल दिया है, तो इट इज़ विदाउट द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट यू कैन नॉट एक्सपोर्ट दिस. मतलब ऐसा नहीं है कि आज किसी ने भी ये उसका फैक्ट्री डाल के मैन्युफैक्चर कर लिया एंड यू कैन एक्सपोर्ट, वैसा पॉसिबल नहीं है. दिस इज़ ऑल्सो सीन इन केस ऑफ फार्मा कंपनीज. फार्मा कंपनीज में क्या है कि वो एकदम हेविली रेगुलेटेड इंडस्ट्री रहता है. सो आपको इंडिया में से काफ़ी सारे अप्रूवल्स लेने होते हैं गवर्नमेंट्स के. देयर आर मैनी लाइसेंसेस, फूड एंड ड्रग लाइसेंसेस एंड द लाइसेंसेस ऑफ दोज वेरियस रिस्पेक्टिव कंट्रीज ऑल्सो, जहाँ से आपको वो लाइसेंस मिलने के बाद ही आप एक्सपोर्ट कर सकते हो. सो देर आर सर्टन कैटेगरी ऑफ गुड्स जहाँ पे आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना रहेगा, विदाउट विच यू कैन नॉट एक्सपोर्ट इट फ्रीली. Understood. Thank you. And Ravi ji, I'll come to you and would like to understand one aspect. जैसा स्नेहल जी ने बताया कि डोमेस्टिक आपको रजिस्ट्रेशन तो करना पड़ेगा एंड देन नॉट एवरीथिंग कैन बी एक्सपोर्टेड. बट मान लीजिए मैं दुबई में माल बेच रहा हूँ या फिर ईरान में माल बेच रहा हूँ, सैंक्शन कंट्री है, या यूएस में माल बेच रहा हूँ. आर देयर any specific guidance which is available to the exporters? Is there a public repository or how do they address concerns? क्योंकि हम लोग जब एक्सपोर्टर्स से मिलते हैं तो बहुत सवाल आते हैं कि क्या मुझे दुबई में माल बेचने के लिए वहाँ एंटिटी बनानी पड़ेगी? अगर बनानी पड़ेगी तो क्या फॉर्म एंड शेप होगा, और अगर नहीं बनानी पड़ेगी तो मैं कैसे कर सकता हूँ? If you can throw more light on these aspects, then it will be helpful. Thank you, sir. मैं बिफोर स्टार्टिंग दिस एग्जैक्ट आंसर मैं ये बताना चाहूँगा कि किसी भी कंट्री में अगर आपने सेल्स करनी है तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि उस कंट्री में कोई टैक्स लॉस तो नहीं है जो आपको कंप्लाई करने पड़े. सेकेंडली, उस कंट्री में कोई प्रोडक्ट कंप्लायंस तो नहीं है जो आपको कंप्लाई करनी पड़े. अब सर ने जैसे दुबई की बात की, एंड दुबई में काफ़ी लोग आजकल कंपनी बना रहे हैं एंड बिकॉज मार्केट भी अच्छी है एंड उस पर अभी कॉर्पोरेट टैक्स आने के कारण वो बहुत एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन गई है. तो दुबई में सेल करने के लिए आपको एंटिटी बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ मार्केट प्लेसेस हैं जैसे अमेजोन है, राइट, दे अलाउ यू टू हैव अ नॉन रेजिडेंट सेलर अकाउंट एंड उसके बेसिस पे ही आप बिना कंपनी सेटअप किए वहाँ पे सेल कर सकते हैं. बट इसमें एक चीज़ है, आप इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए. जैसे सभी ने देखा होगा कि इंडिया में अगर अमेजोन से आप खरीदते हैं, एक अमेजोन प्राइम करके टैग आता है. प्राइम का मतलब क्या होता है कि वो सामान एक अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ा है. सिमिलरली जब आप यहाँ से गुड्स दुबई अमेजोन वेयर हाउस में भेजेंगे, पॉइंट ऑफ सेल आपका वहाँ पे दुबई हो गया, तो आपको वहाँ पे वैट लग सकता है, लगेगा ही. क्योंकि अगर जब हम B2B नॉर्मल एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें वो वैट नहीं लगता, बिकॉज पॉइंट ऑफ सेल इज फ्रॉम इंडिया. तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना चाहिए जब आप दूसरी कंट्री में सेल कर रहे हैं कि किसी एक्शन से, ट्रिगर से आपका पॉइंट ऑफ सेल हो गया तो वहाँ पे आपको टैक्स कंप्लायंस तो नहीं बन जाएंगे. मैं एक यूएस का एग्जांपल भी देता हूँ. यूएस में अगर आपने फूड प्रोडक्ट्स भेजने हैं तो यू हैव टू बी FDA कंप्लाइंट. अब सर ने जैसे बात की कोई रिपोजिटरी या टैक्स लॉस है, वो सब ऑनलाइन अवेलेबल है. अगर आप मुझसे 1-to-1 डिस्कस करेंगे, आई शेयर द लिंक विद यू कि यूएई में नॉन रेजिडेंट्स के लिए क्या लॉ है, यूएई में दुबई म्यूनिसिपैलिटी रजिस्ट्रेशन होती है वो क्या होती है, उसके क्या सोर्सेज हैं. यूएस में FDA लॉ है, उसका एक प्रॉपर एक वेबसाइट एंड लिंक है. तो आपको अवेयर रहना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट पे क्या कंप्लायंस, कैसे कंप्लायंस लगेगी, एंड वी कैन हेल्प यू इन दैट. थैंक यू रवि जी. आपने बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में बताया है, बट मुझे लगता नहीं है कि इतना सिंपल रहता होगा. विल कम बैक टू यू अगेन विद सम क्वेश्चंस, बट उससे पहले मैं नवनीत जी से कुछ सवाल पूछना चाहूँगा. नवनीत जी, आपने बताया आप वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं. एग्जैक्टली वर्ल्ड ट्रेड सेंटर करता क्या है एंड उसका मॉडल क्या है? एक्सपोर्टर्स क्या आपसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, या फिर मतलब इज़ देयर अ मेंबरशिप और समथिंग विच इज़ टू बी टेकन, या फिर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कुछ इवेंट कराता है या नॉलेज सेशन कराता है या कुछ और ऐसा कुछ कराता है जिससे एक्सपोर्टर्स बेनिफिट ले सकते हैं, एंड ऑनगोइंग बेसिस पे किस तरीके से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर या का बेनिफिट ले सकते हैं? Thank you, Induji. I would like to start at
uh, with the 9/11 story, I think we are pretty much aware of it. We are headquartered in US and we are a 5-decade-old association, and we spread post 9/11. We started opening more offices, and we increased our presence, for example, into India also. And in India itself, we are coming up with 40 World Trade Centers. Mumbai happens to be the oldest, which houses prestigious IDBI towers. We have Exim Bank with us. So it's not primarily an infrastructure development company that we are, but we facilitate trade globally. And we have a capacity to represent 10 lakh businesses globally. So through the linkages that our global offices provide, we have, you name the business, we have it. We talk about Amazon. We have done a beautiful property in Bangalore, World Trade Center Bangalore, where we have, I think, around 12 floors dedicated to Amazon only. So I believe Amazon have their headquarters at World Trade Center Bangalore. We are coming up with a World Trade Center in New Delhi. I think it's exactly opposite AIIMS. It's probably one of the largest projects in India. Central government happens to be a partner. NBCC is our partner to the project. We come back to the trade facilitation part. We talk about Rajasthan, for example. We are in Jaipur, and I would like to compliment the team, Sanjay ji, Indu ji, कि आपने जयपुर इसको pick किया, जयपुर को इस event के लिए. And I wish that ये event जो आपने सर जयपुर में किया है, you increase the momentum. You come here every quarter at least, and it's not just Jaipur that you look at. You go to every nook and corner. I think places we have never heard, like Banswara, you know, Dungarpur, Pratapgarh, Sagwada, Chittorgarh, Bhilwara. It's a belt. जैसे आपने mention किया सर जब आपने फोरम की ओपनिंग करी थी कि बाड़मेर में आपने एक्सपोर्ट्स देखे हैं, जैसलमेर में देखे. But this is a belt which needs a lot of attention, and that's where we have been working for last 10 years. It's the tribal area, and there is a government policy like ODOP, one district, one product, if you see, and there is a lot of attention and focus to it. So we go with the government policies, we travel, and we meet a lot of manufacturers who really need help and attention. That is a segment where there is a lot of role where BriskPay can play, because we found during a lot of interaction and activities that we organized in the state in last 10 years, around 300 events we have organized so far, we realized that there is actually a need to understand technology. One, they are small sole proprietorship firms that they start with no capital, I think, and a small team of 2 or 3 members. How can we expect them to leverage upon technology? It's not possible. Technology is expensive. Now something which is on your mobile application as the application, rightly, BriskPay, I think puts it, so they don't need an IT infrastructure for that. So that's where I think an important role could be played, that these small manufacturers and traders who actually want to, though it's not possible so easily, give up selling their products domestically to traders who actually eventually export the product. They want to export directly. So for them, one, venturing into export is, this is something which is an enabler. They may not have access to finances at all. Securing bank credit is a difficult task. Definitely government policies are in place. State is definitely doing its bit. Central government is doing its bit. And one, you have a product which is ready for sale, and you know that it can be exported, it is exportable, it can command a very good price, like handicrafts, right? And you don't know how to do it because you don't know how to realize a payment. You have identified a buyer through one of the exhibitions, for example, what we organize, but you don't know how to do a transaction. So I think, like we have traveled, so I think when you come down more often and you organize more such events, more such contact programs, I think there are a lot of SMEs, a lot of small enterprises which are waiting to understand how through this technology, because this is the ultimate thing that they need. They export and they want to realize the money, they want to feel that the money is coming directly to them. So we have identified probably a couple of thousand such manufacturers actually who are MSMEs,
and we work very closely with them. I think I'll come back to you, Induji, please. So, one follow-up question on that, Navneet ji. Are there training programs also? Yes, which we can do. be We accessed have online? a WTI, we have a World Trade Institute, which is a 25-year-old institute headquartered at our World Trade Center, Mumbai. And we have Forex programs. We are doing them for last 20 foreign export-import certification programs, foreign language programs. So we are doing that for the last 20 years. We're trying to bring them down to Jaipur also and increase the reach. But we are doing it in hybrid mode. So a lot of participants from Rajasthan are there for last 5 years with us. Great. You talked about Banswara also, and Right, happy sir. to share. Nilesh has original connection with Banswara. He is native of Banswara, Nice. so he would be more than happy to hear about that. Absolutely. Couple of things. I'll come back to Snehal on this question कि ठीक है IEC रजिस्ट्रेशन ले लिया आपने, रवि जी की हेल्प से ओवरसीज ज्योग्राफी के प्रोडक्ट कंप्लायंसेस और टैक्स कंप्लायंसेस भी देख लिए. अब बात आती है पेमेंट आने की. पेमेंट आया और आपने ले लिया. ये क्वेश्चन हमारे भी बहुत सारे कस्टमर पूछते हैं जहाँ पे इश्यूज हमने ऑब्जर्व किए हैं. पर्पस कोड, एक एग्जांपल लूँगा. जैसे जो लाइव इशू हम लोगों ने फेस किया P0104, बैंक्स अलाउ नहीं करते हैं. बहुत कुछ बैंक्स करते हैं, बहुत कम बैंक मार्केट में करते हैं. इट्स डिस्करेज्ड बाय मोस्ट ऑफ द बैंक्स. बट एक्सपोर्टर कहते हैं नहीं जी, हम तो इतने सालों से eBay या अमेजोन पे बेच रहे हैं, P0104 में लेते हैं. सो वाई शुड दे नॉट टेक इट इन P0102 और P0103? किसी में भी ले लिया और अगर बैंक ने नहीं पूछा तो क्या उसके नुकसान हो सकते हैं? एंड व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच पर्टिकुलरली? हु कैन गाइड देम फॉर इट? सो इंदु जी, जो प्रॉब्लम है वो आज की तारीख में इंडिया में काफ़ी सारे एक्सपोर्टर्स को फेस हो रहा है. एंड जो अभी आपके प्रेजेंटेशन में एक चीज़ था कि मोर देन 45% एक्सपोर्टर्स आर SMEs, वहाँ पे उनको गाइड करने वाला कोई होता नहीं है. एंड वो सबसे ज़्यादा दिक्कत उनको ही फेस होती है. अभी ये जो आपके एक प्रेजेंटेशन के टाइम आपने एक एक्ट का जिक्र किया था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, FEMA. वो एक्ट की खूबी ये है कि आज की तारीख में वो एक्ट पे किसी का कंसेंसस नहीं है. RBI ने एक्ट लाके रख दिया. वो 1999 से ये एक्ट है, बट टिल टुडे देर आर डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस अमॉन्ग्स द बैंकर्स. मतलब कोई बैंकर्स कोई चीज़, कोई ट्रांजैक्शन परमिट करेंगे, जैसे आपने बताया कि वो एक्सपोर्ट P0104 में जो पेमेंट्स आते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं काफ़ी सारे बैंकर्स. काफ़ी बैंकर्स स्ट्रेट अवे मना कर देंगे, दिस इज़ नॉट अ वैलिड पर्पस कोड फॉर द एक्सपोर्ट्स. सो it is very important to have to consult your bankers or to have a proper foreign exchange management act consultant, FEMA consultant in place before you undertake any transaction. And the importance of having a good consultant is that आज इंडिया में 150 करोड़ लोग हैं, उसमें से देर आर हार्डली 1000 FEMA consultants who can guide you properly on these purpose codes and other compliances. So this thing needs to be kept in mind. एक दूसरा क्वेश्चन आपको काफ़ी सारे कस्टमर से फेस होता होगा, डेट वो एक्सपोर्ट्स करते उसके पहले उनके पास एडवांस में पैसा आ गया होता है. नाउ FEMA एक्ट ये बोलता है कि अगर किसी एक्सपोर्टर को एडवांस में पैसा आया है, then within 1 year they should export the goods against this advance. अगर वो नहीं हुआ तो RBI का अप्रूवल लेके फिर वो एडवांस वापस करना रहता है, वो जो काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल नॉन कंप्लायंसेज द बैंकर्स एंड द RBI पुट्स यू ऑन एक्सपोर्ट कॉशन लिस्ट. मतलब उसके बाद में ये होता है कि आप ₹1 का भी एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे. सो ऑल दिस स्मॉल थिंग्स दो दे आर नॉट गोइंग टू हैम्पर यू अ लॉट इन द इनिशियल स्टेज, बट बाद में जब ये बड़ा हो जाता है उसके बाद में इट क्रिएट्स लॉट ऑफ ट्रबल फॉर द बिजनेस. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसल्ट, टू हैव अ गुड कंसल्टेंट इन प्लेस. एंड फॉर एवरी ट्रांजेक्शन, दो इट वुड बी a hassle, but always consult your bankers before taking any transaction. थैंक यू स्नेहल जी. एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड ओवर हियर, क्योंकि ये मैंने अपने बैंकिंग करियर में भी देखा था. आप में से हो सकता है जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं उन्होंने ये ऑब्जर्व किया होगा. आप कंसल्ट ज़रूर करिए, क्योंकि मान लीजिए आपने छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ, आपने
एडवांस में पैसा ले लिया, एक्सपोर्ट नहीं किया, कॉशन लिस्ट का इन्होंने बताया। आपने एक्सपोर्ट किया लेकिन उसका पैसा नहीं आया, आपने कोई एक्शन नहीं लिया, उसके ऊपर में भी यू कैन थ्रो लाइट लेटर ऑन। बट इन दोनों के बीच में एक और निटिग्रिटी आती है कि आपने एक पर्पस कोड में पैसा लिया, मान लीजिए एडवांस में, फिर बैंक को आपने रेगुलराइज करने के लिए दिया, बैंक कहता है ये गलत पर्पस कोड में लिया। क्यों भाई? यार जब पैसा आया उससे पहले आप शिप कर चुके हो। सो बहुत छोटी चीज़ है, शिपिंग बिल का डेट अगर 31 मार्च है, पैसा 31 मार्च से पहले आया है तभी वो एडवांस होगा। लेकिन अगर पैसा 31 मार्च के बाद आया है तो वो पोस्ट शिपमेंट वाला पर्पस कोड आपको यूज़ करना है, वरना पर्पस कोड चेंज कराना अगेन आपको एक आदमी को लगाना पड़ेगा, बैंक के साथ मैनुअल प्रोसेस करना पड़ेगा। Similarly, I would request Percy to cover in the subsequent session more about detail। जो एक प्रॉब्लम हम देखते हैं CSB 4, CSB 5 कुरियर शिपिंग बिल वाला, मॉनिटरी लिमिट्स हैं। As a payment company, and why I am highlighting this particular aspect, as a payment company we can process the payment for you। आपसे क्वेश्चन पूछने में आपने बोला मेरा CSB 4 में जाता है, मैं ये पर्पस कोड यूज़ कर रहा हूँ, CSB 5 में जाता है, बट बाद में आप रिकनसाइल करेंगे तो देखेंगे यार CSB 4 में तो परमिसिबल लिमिट x थी, लेकिन आपने तो 5x वैल्यू का भेजा है माल, या CSB 5 में एक लिमिट थी। वो चेक शायद लॉजिस्टिक्स कंपनी के एंड पे भी होगा, क्योंकि अगर आप डिक्लेयर करेंगे इसका वैल्यू इतना है तभी वो आपको बताएंगे 4 में जाएगा या 5 में। लेकिन अगर आपने वहाँ सही डिक्लेयर किया क्योंकि वहाँ शिप करना था, मुझे गलत डिक्लेयर किया क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसको चेक करना, बट वो पर्पस कोड गलत चला गया, तो परसों एक नई प्रॉब्लम आपको रेगुलराइजेशन करने में आएगी। सो दीज आर माइनर एस्पेक्ट, बहुत छोटे हैं। सजेशन इंडस्ट्री में सबका वही रहता है, स्नेहल जी, रवि जी, एवरीबडी विल अग्री टू दैट कि आप ये मत देखिए आज मेरा पेमेंट क्रेडिट आ जाए, कल क्या होगा देख लेंगे। एक दिन रुक जाइए, 2 दिन रुक जाइए, 1 हफ्ते रुक जाइए। डू थिंग्स राइट एट फर्स्ट प्लेस। That is the approach we follow at Brisk पे also। First time right approach should be there। बहुत सारी फॉरेन कंपनीज हैं, इनफैक्ट कई सारे सेशंस में ये पॉइंट एक निकल के आया कि हमने तो जी फलाना कंपनी से जो इंडिया में रजिस्टर्ड भी नहीं है उससे पेमेंट मंगा लिया, अब हमें FIRC नहीं मिल रहा है, हम क्या करें? आप उस बैंक के पास जाइए जिसके थ्रू उस ओवरसीज़ कंपनी ने किया है, किस रेगुलेशन में किया है, रेमिटेंस में उसने क्या रिमार्क्स डाला है, नहीं पता। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू वर्क विद अ रेगुलेटेड कंपनी, वेदर इट इज़ ब्रिस्क पे और एनी अदर अप्रूव्ड पेमेंट प्रोवाइडर फ्रॉम द इंडिया। आप रेगुलेटेड कंपनी के साथ काम करिए ताकि आप इन कंट्री कंप्लायंस में नहीं फंसेंगे। आई एम कमिंग बैक टू यू रवि ऑन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट यू मैंशन। आपने ओवरसीज़ वेयरहाउस की बात की जहाँ पे गुड्स रखना पड़ता है, ये एक आपने अमेज़ॉन की बात की, बट हम में से बहुत लोग B2B की भी बात करते होंगे। सो इज़ देयर अ गाइडलाइन जहाँ पे ओवरसीज़ वेयरहाउस अगर आपको अपॉइंट करना है और पहले से माल वहाँ रख के बेचना है तो इन कंट्री कंप्लायंस भी किक इन करते हैं कि आपको कोई अप्रूवल लेना पड़ता है बैंक से या किसी से? इस केस में जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, सिंस कई मार्केट प्लेस की ना स्टोरेज कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, एंड आई हैव सीन सम सेलर्स वो वहाँ 3PL वेयर हाउसेज की फैसिलिटी यूज़ करते हैं, राइट। उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, सिंस जब आपको पता है आपने वेयर हाउस में सामान भेजना है, उस केस में इम्पोर्टर इज़ नॉट डिफाइंड, राइट। तो उस केस में एक आपको इम्पोर्टर चाहिए होता है, क्योंकि जब सामान अमेजोन से बिकेगा या वेयर हाउस से बिकेगा उसके बाद ही आपका जो बायर है वो आइडेंटिफाई होगा, तो आपको एक इम्पोर्टर ऑन रिकॉर्ड कंप्लायंस रिक्वायर्ड रहती है। उसके अलावा आरबीआई में भी जो फेमस रूल्स हैं उसमें वेयर हाउसिंग की अलग अलग फॉर्मेलिटीज़ हैं, उसमें आपका टाइम साइकिल भी बढ़ जाता है 15 महीने का, राइट। तो जो आपके प्रोडक्ट स्पेसिफिक कुछ लॉज होंगे, वी कैन डिस्कस कि क्या क्या कंप्लायंसेस रहेंगी, वी कैन डू दैट। इसमें एक फॉलोअप क्वेश्चन ये आता है कि एक तो हो गया इन कंट्री कंप्लायंसेस। मान लीजिए आपने मेहनत करके एक ब्रांड बनाया, आपने B2B में बिजनेस चालू किया, वो मार्केट प्लेस पे ब्रांड नोन है और आप उसको बेच रहे हैं, आपका प्लान है आप 6 महीने साल भर में अपना भी ब्रांड लॉन्च करेंगे, बट आप एक्सपोर्ट मार्केट में ऑलरेडी हैं, आपका एक्सपोर्ट मार्केट में ब्रांड नोन है। आर देयर कंट्री टू कंट्री रेगुलेशंस ऑल्सो विच वी शुड टेक केयर टू प्रोटेक्ट आवर ब्रांड, एंड हाउ कैन दैट बी डन?
दिस इज़ वेरी रेलिवेंट क्वेश्चंस. मैं इस पे आऊँगा. ट्रेडमार्क एक ना टेरिटोरियल राइट होता है. फॉर एग्जांपल, आपने इंडिया में, आपका ब्रांड बहुत अच्छा चल रहा है, आपने इंडिया में ट्रेडमार्क लिया हुआ है, राइट. आप चाहते हैं मैं उसे ग्लोबल स्केल करूं, आप उसे यूएस में बेचने जाते हैं, तो आपको कई सेलर्स को ये लगता है कि इंडिया में ट्रेडमार्क ले ले, दैट इज इनफ, बट दैट इज नॉट राइट. होता क्या है, ट्रेडमार्क एक टेरिटोरियल राइट है. अगर आप चाहते हो आपको यूएस में भी उसका राइट मिले उस ब्रांड का, तो आपको यूएस में भी ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा. इसमें एक बहुत ही पेक्यूलर फैक्ट बताता हूँ. ट्रेडमार्क में ना दो सिस्टम्स हैं. कुछ कंट्रीज फॉलो करती हैं फर्स्ट टू फाइल, कुछ कंट्रीज फॉलो करती हैं फर्स्ट टू यूज. अब इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैं इंडिया में बेच रहा था, मेरा इंडिया में ट्रेडमार्क है, मैं यूएस में भी बेचने लग गया, राइट. सपोज मैंने जनवरी में बेचना शुरू कर दिया और यूएस में भी बहुत अच्छा चलने लग गया. अब सपोज मुझे देख के यूएस में एक बंदे ने अप्रैल में ट्रेडमार्क ले लिया, अप्लाई कर दिया, राइट. तो राइट किसको मिलेगा? अब मैं बाद में अप्लाई करता हूं, तो यूएस, इंडिया और कुछ ऐसी कंट्रीज हैं वहां पे फर्स्ट टू यूज गेट्स अ राइट. तो आई एम समवट सेफ. बट कुछ ऐसी कंट्रीज हैं ग्लोब में, आई विल टेक नेम लाइक यूके, यूरोपियन, चाइना, वहां पे फर्स्ट टू फाइल गेट्स अ राइट, कि जिसने ट्रेडमार्क पहले अप्लाई कर दिया. अब आप ना कहीं गूगल पे जाके चेक करना, एप्पल कंपनी को बहुत बड़ा डैमेज पे करना पड़ गया था इसी चक्कर में चाइना में. तो आपको जब भी एक्सपोर्ट करना है, आपको ये देखना है कि उस कंट्री में टेरिटोरियल राइट क्या है, वेदर फर्स्ट टू फाइल गेट्स अ राइट. अगर वो है तो यू शुड अप्लाई फर्स्ट बिफोर सेलिंग. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, क्योंकि मैंने ये देखा है, अभी रिसेंट एक एग्जाम्पल हुआ था, अमेजोन पे एक टॉप सेलिंग ब्रांड था, वो यूके में 2 साल से बेच रहा था, एंड ही हैड सेल्स ऑफ मोर देन 1 मिलियन पाउंड. किसी और ने देखा कि वो मार्क उसने यूके में रजिस्टर नहीं किया, किसी बंदे ने अप्लाई करके रजिस्टर करके उसे डीलिस्ट करवा दिया, उससे तकरीबन 10,000 पाउंड की पेनल्टी पे करनी पड़ी रिमूवल ऑफ गुड्स के लिए. तो एक ट्रेडमार्क होना और उसकी नॉलेज होना उस कंट्री की बहुत जरूरी है सर. So I would advise take help of Snehal ji and Ravi ji to ensure that you don't fall into this trap and you know solve your business issues before they occur. Prevention is better than cure. क्योंकि एक बार जब प्रॉब्लम हो जाएगी उसके बाद दरवाजे से दरवाजे भागना पड़ेगा उसको सॉल्व करने के लिए. So it's better to do it first time right and take expert guidance. That's the outcome which is coming out of this discussion. Navneet ji, I'm coming back to you and trying to understand companies like BriskPay or maybe the associations, how can they work with you? कुछ examples आपने बताए, maybe if you can quote 2 or 3 ways they can work with you and help the community to grow. If you can throw some light on that. Sir, I would like to continue from where my fellow panelist left. I think we faced a similar issue in, I think, Sanganeri art also in Jaipur, very recently, in just last couple of years, where the trademark is always a question, I think. So, and as you said, sir, Induji, that how we can collaborate and spread a message. We can take a couple of examples here. Like we always advocate to MSMEs across the state wherever we travel that you have a product, you have invested in the product and you want to market it. Now another part is technology and as you said compliances. Now everything comes at a cost, that's very much true. Nothing comes, obviously technology is not free. You can understand technology on Google, but obviously implementation is a bigger task. So either you focus on the product, right, and you master in manufacturing it, because when it comes to exporting a product, you need that expertise. The product has to be approved overseas. As you said, we saw in the previous slides, sampling is there where you don't get any money on samples. So you invest a lot of time, energy, your creativity, your innovation, you manufacture a product and then you build to export, right? And finally you go to maybe 100 exhibitions before finding your first buyer overseas, right? So, and then comes compliances. We advocate that when we create more such forums, it is important that manufacturers, small manufacturers in our state, they should understand that let this job be given to the consultant, you know, the compliance part. You buy technology and you don't know how to run it, right?
It's not easy, obviously. We're not talking about somebody who is a 500 crore rupee entity. They have resources, they have educated people in the team who can understand technology and who can work on the various portals. It's not easy for somebody who has a 5 or 10 employee setup who are manufacturing and running around door to door to sell the product. So we always advocate that give this job to the consultant who has technology, who understands technology, and who works on technology around the clock. Although there is a cost to it, but in that cost he can reap you those benefits. As you said that it's difficult, if you have put in a wrong code and it backfires and you have further compliance to do, and then you will find a chartered accountant, you reach out to somebody and you say that, okay, at any cost, help me get rid of this notice. I think so. It's better that all the small manufacturers, be advised by doing these kind of forums that please, you focus on the product first. You compete, right? You scale it, you bring revenues home, and then you have a consultant always all throughout, Maybe you can have somebody on a retainership basis, where the payments and the compliance is, it's not your cup of tea. Honestly, it's education. One, you are not, a lot of MSMEs, forget about the large 4 or 5 cities like Bhilwara, Jodhpur, Kota, Udaipur and Jaipur, obviously. In all the small other districts, education is not that great. And they are trying to manufacture product and they are trying to export it. How it is expected that they are fairly well versed with all the technology and the compliances, it's not possible. So I think various associations and obviously Brisk Pay can lead the pack, I think. They come down more often and reach out to these places where exports are happening. As you said, you are able to identify exports. We previously discussed. There are exports happening at a lot of other places also. And then there are products. They are willing to export. They are exporting also. So I think associations need to, because government is fairly well present. We have DIC offices in almost every district industry centers, and they have GMs very much placed there. So they are right there. But at the same time, they have their own limitations. They have one DIC office as a whole city to feed, and it's not possible. They can't bring everybody down together on a forum, I think. So I think all the associations can collaborate together as and when possible and reach out to as many districts possible. Over to you, sir. Thank you, Navneet ji. So अब हम जयपुर में इस सेशन के while expert advices के लिए स्नेहल जी, रवि जी, they charge for those services, but since इस सेशन में आए तो फ्री में कुछ तो लेके जाएंगे. So Snehal ji, from your perspective, this one last question, जो free advice है आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहिए without charging. We are sitting in June again. Financial year filing जो होंगे last year के final audited financials file करने होंगे. Audit is around the corner, कई जगह audit चालू हो गया होगा. So what 3 things exporters who have been exporting or those who are going to export should take care in advance or take some action before they get into audit and go for filing, particularly related to cross-border trade, if they have already done it? इंदु जी, जो हमने डिस्कस किया है, सबसे पहला जो चीज़ है जो ध्यान में रखना चाहिए वो है the purpose codes that you mentioned at the time of receiving the payments, and this has to be clearly communicated to the entire team members so there should be a specific communication ki these are the purpose codes that has to be used for such kind of payments. वरना उसके बाद में ऐसा होगा that जैसे आपने बताया, it would be a headache to change the purpose codes later on. Second जो चीज़ है, the documentation part, so shipping bill, bill of lading, e-FIRA, the bank realization certificates, all these things has to be maintained digitally as well as physically by everyone, and there is no second thought to the documentation part. We have seen instances कि आज किसी ने एक्सपोर्ट किया हो, आज से 3-4 साल बाद बैंक वापस आता है आपके पास कि ये एक्सपोर्ट्स किए थे, इतने बिल्स हमारे EDPMS में आउटस्टैंडिंग है, एंड यू प्रोवाइड अस द डॉक्यूमेंट सो दैट वी कैन नॉक ऑफ.
अभी यहाँ पे आपने जब आपको पेमेंट रियलाइज होगा बैंक्स को सारा डिटेल दे दिया होगा, बट just because of the some things going wrong at the banker's end, your details are still outstanding in the EDPMS system. So this documentation would help you at that time. And the last thing which everyone needs to check is अभी ऑडिट के टाइम पे आप जिससे भी ऑडिट करवा रहे हो, जो CAs आपने अपॉइंट किए होंगे, वो आपको एक चीज़ बोलेंगे कि आपका एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स के लिए जो रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स आपके बुक्स में आउटस्टैंडिंग है, लेट अस राइट इट ऑफ और नॉक ऑफ अगेंस्ट ईच अदर. मतलब आज मेरा 100 रुपये का एक्सपोर्ट रिसीवेबल है बुक्स में, उसके अगेंस्ट इंपोर्ट पेएबल है 80 रुपये का, तो हम लोग इंटर एंट्री पास करके एडजस्टमेंट करके सिर्फ 20 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल बुक्स में दिखाए. ऐसा आपको एडवाइस काफ़ी जगह पे मिलेगा, बट फेमा डज नॉट परमिट दिस. सो ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए. फॉर वेन एवर देयर इज अ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन, फॉर ईच एंड एवरी थिंग डेट यू डू इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, consult the banker and take the banker's approval before doing anything unilaterally in your books of accounts. So this would be certain things which everyone has to keep in mind. Thank you, Snehal ji, and this free advice we all should carry when audits and filings are around the corner. Ravi, coming to you for that free advice. वैसे नवनीत जी के पास फ्री एडवाइस के लिए नहीं जाऊंगा क्योंकि वो तो वैसे भी नॉट फॉर प्रॉफिट हैं, तो वो चार्ज नहीं करते हैं. बट क्वेश्चन फ्रॉम यू इज़, हमने ये बात की कि किस तरीके से प्रोडक्ट कंप्लायंसेस को देखा जा सकता है, किस तरीके से लोकल टैक्स लॉज को देखा जा सकता है, बट देयर कुड बी सिनेरियोज जहाँ पे गुड्स हमने भेज दिए हैं बट अब वापस लाना पड़ रहा है, चाहे क्वालिटी रीज़न हो, चाहे रिजेक्शन हो, चाहे लोकल वॉर हो. आजकल वॉर्स बहुत चल रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, माल जा चुका है, अटक गया है, अब ना उसका पैसा आने वाला है ना माल आ रहा है, और यहाँ के रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ तो आपको हाउंड करेंगी. हाउ टू डील विथ सच सिचुएशन, व्हाट इज़ द वे आउट फॉर एक्सपोर्टर? चलिए एक टाइम के लिए एक्सपोर्टर ये मान लेता है चल भाई अब फंस गए, नुकसान झेल लेंगे. नुकसान तो एक चीज़ है, पैसा नहीं आएगा, चाहे माल भी नहीं आएगा. लेकिन जो स्नेहल जी ने बोला बैंकर वाला एस्पेक्ट, हाउ टू गेट ओवर दैट सिनेरियो ऑल्सो. अगर आ सकता है तो माल कैसे आए, क्या करें, नहीं आ सकता है तो क्या करना चाहिए? इसमें मैं पहले टेकअप करूँगा कि आपका माल का पैसा नहीं आना है, ठीक है. अभी रिसेंटली कुछ साल पहले श्रीलंका के साथ हुआ था. श्रीलंकन इकॉनमी वेंट डाउन, तो काफ़ी एक्सपोर्टर्स का जो जेन्युइन रिसीवेबल्स था वो नहीं आया. तो इसमें वी हैव टू राइट टू RBI फॉर उन्हें दे नो द सिचुएशन की क्या पैसा क्यों नहीं आया, राइट. एंड जो एक्सेप्शनल और जेन्युइन कंसर्न्स होते हैं वो ऑल टेकअप होते हैं. इसमें मैं एक अपने एंड से पॉइंट ऐड करूँगा. ई-कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स में भी ना क्या होता है, आप सपोज अमेजोन से बेचते हैं, सपोज आपने $100 का लिस्ट किया वहाँ पे, अमेजोन की स्टोरेज फीस, और कई बार क्या होता है स्टार्टिंग में आप एडवर्टीजमेंट्स इतनी कर देते हैं कि आपको तकरीबन पैसा ही नहीं आता. ये कल की बात है, मुझे सेलर का फ़ोन आया कि $100 का लिस्ट किया था जी, $20 अमेजोन ले गया, $50 एडवर्टीजमेंट में चला गया, 60 था, तो बाकी पैसा नहीं आया, तो क्या करना है. तो उस केस में हमें एडवाइस करना है कि हमें उन सभी डॉक्यूमेंट्स की ट्रेल रखनी है, ऑडिट ट्रेल, ताकि वी आर एबल टू एक्सप्लेन टू RBI एंड द बैंक्स सो दैट दे आर सेटिस्फाइड कि ये जो रियलाइजेशन आई है दैट इज ऑन जेन्युइन अकाउंट, तो इसलिए मुझे कम रियलाइज आया. अब मैं सेकंड पॉइंट पे आता हूँ, जो सामान वापस लाने की कॉस्ट. तो उस सिनेरियो में जनरली व्हाट आई सजेस्ट टू सेलर्स इज कि आप अगर वहाँ पे लिक्विडेट कर दे, वो थोड़ा बेटर ऑप्शन होता है. बिकॉज कॉस्ट वापस लाने की, वापस में कस्टम ड्यूटीज़ या जो भी टैक्सेस लगते हैं, तो वो थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा होती है. तो इट्स बेटर टू हैव अ लिक्विडेशन, या वहाँ पे एक और ऑप्शन होता है कि वहीं से ही किसी और को बेच दो आप. तो ऑनलाइन आजकल मल्टी फुलफिलमेंट चैनल्स खुल गए हैं. सपोज आपका कहीं सामान बिक नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली यू कैन प्लेस इन सम अदर पोर्टल, कहीं किसी वेयर हाउस में प्लेस कर दो, जिससे आप अपने गुड्स की ज़्यादा वैल्यू रियलाइज कर पाएँ. सो दिस इज अ टिप फ्रॉम माई साइड, दिस कैन बी डन. थैंक यू रवि जी. एज वी हैव मूव टुवर्ड्स द एंड ऑफ सेशन एंड पेट में चूहों ने अब तूफान मचाना शुरू किया होगा, आई एम श्योर. सो स्नेहल जी, आई वुड लाइक टू थैंक यू. आई थिंक फ्री एडवाइस तो आप देते ही हैं. प्लीज एनीथिंग यू वांट टू ऐड? We just quickly take two scenarios. One, I will through this platform request BriskPay
to understand the startup ecosystem in Rajasthan. You know, it has come up in last 10 years. There are a lot of youngsters across the state, you know, and in the last couple of years also, and I think 5 years down the line, the scene will completely change. There are a lot of BE school graduates who don't want to take up employment, who want to start up their own businesses, and they are fairly like, again, just a one laptop office, you know, one laptop and one mobile phone and just a handful of friends. I think they are very good. We come across very often with these startups. We interact with them. They are both into services and products. I think so. At an early stage, if they understand these kind of you know, services, it will help them you know, a long way, and they can get associated with you at an early stage. So they will probably travel with you far. And secondly, traditional cities like or Manchester of India, Bhilwara, you know, a place where textile is happening like anything, and they're exporting to more than 40-50 countries, and there are manufacturers who have crossed this 2,000, 3,000, 4,000 crore of you know, investments into their units. I think annually manufacturing around 70-75 crore meter of fabric. I think that's a place where, again, which needs a lot of attention. It's a very industrious city, you know, but again, technology has not penetrated that much. So I think that's again a place where we can look at, and again, startups I will definitely request if you can take a look at. So. Thank you, Navneet ji. That was a free advice for me, so I'll take that with me. And few things I would just like to conclude the discussion. Snehal ji talked about the challenges that one should take care of when they are starting off, and when they have started exporting, and how they realize and look at the audit and compliance aspect. Set off as a clear takeaway: you should not do it even if your CAs are advising, because this is governed under FEMA, not under Income Tax Act. At times, we may have scenarios, something is permissible under FEMA but not allowed under income tax, or something is allowed under income tax, not allowed in FEMA. When it comes to regulation, stricter of the approach has to be followed. This is a universal truth in cross-border. As Ravi ji mentioned, look at the local jurisdiction compliances, because it can dent your business in a big way. आज उसको इग्नोर करेंगे तो शायद हम उस जगह पे कल माल ना बेच पाएं. Let us not get into a scenario wherein, you know, business or brand gets blacklisted. We all in business know there are via medias, or you know, there are different ways of doing things, but that ideally should not be an option, and if that option has to be explored, should be the last option, but not at the cost of compliance. And I would like to thank Snehal ji, Ravi ji, Navneet ji for taking time out, joining us today. They are here for the day. I would request you all to speak to them. फ्री बेसिस में आज जितना मिल सकता है ले लीजिए, कल से तो ये लोग चार्जिंग बेसिस पे ही करेंगे. एंड वी वुड लाइक टू टेक अ पॉज ओवर हियर फॉर दिस सेशन, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू. विल कंक्लूड दिस सेशन. थैंक यू.